Topic number 1. You have to tell me the topics only. Okay. Do laws apply to all? Okay. Do laws apply to all? Yes, in the sense, okay, when we are talking about any particular area, especially about India, okay, yes, laws are for everyone, but condition apply. Okay, हमारे यहाँ कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है because we have too much population. The first problem. Okay, education. Okay, this is the second problem. Okay, health issue, this is the third problem. There are so many problems, unemployment and all that. So in these circumstances, we can try to apply all the sections and all the primitive things, but it is not possible for each and every section and each and every people of the India. Okay, it is not possible because we have 1.30 crore people in India. Do you thinking, okay, is it possible? आपको क्या लगता है ये हो सकता है? 1.32 crore people. Okay, laws for everyone. Okay, it applied for everyone, but okay, अप्लाई होने के बाद इस सोल्यूशन तक पहुंचना ये हार्डली इम्पॉसिबल है. ओके, हम बोल सकते हैं कि हो गया, हो सकता है, बट नो. ओके, बट हाँ, लॉ के हिसाब से इट इज फॉर एवरीवन. ओके, हर जगह पे है, हर जगह पे आपको लॉ देखने को मिलेगा. ओके, एक ही स्टेट था जहां पे लॉज अप्लाई नहीं किया जाता, दैट वाज कश्मीर. राइट नाउ it is a union territory, so we don't have any problem now, right? It is also part of India and the union territory of India, so there is no problem. But okay, we can say laws for everyone, it applied at everywhere. Okay, in the India. Okay, Kashmir to Kanyakumari and east to west, everywhere. 7 sections to Gujarat. Okay, Kashmir to Kanyakumari. Okay, which one the next? Sir, how do new laws come about? Okay, I told you how the new laws apply. Okay, how do the new laws be made? Okay, if you are thinking the laws are made by a particular people, no, law always made by parliament and the MPs, member of parliament. Okay, those who are coming from different region, different areas of the India, different states. Okay, we have one more section, we have one more division. Okay, Rajya Sabha. Okay, we have 11 members from Gujarat, and Lok Sabha we have 26 members from Gujarat. It means every state, okay, has their own people there. Okay, they are representative of any particular area. Okay, they are coming from particular area like a Surat. Okay, they are coming from Sabarkantha, they are coming from different area of the Gujarat, different areas of the Kashmir, Kanyakumari. Okay, you can say how many areas we have in India. Everywhere we can see these people. Okay, it means we have a representation of whole India. Understood what I'm telling you? We have a complete package of India, and these people are deciding. Okay, we have elected them, we send them there. Okay, and these people are deciding which law is good for us, which law is not good for us. The final decision will taken by the government. Understood? जितने भी लॉ सारे वहीं से बनेंगे, लोकसभा, राज्यसभा. ओके, उसको अप्लाई किया जाएगा. सिंपल फॉर्मेशन, राइट? लॉ कैसे बनेंगे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, हाउ वी आर मेकिंग लॉज. ओके, राज्यसभा, लोकसभा. ओके, दिस इज द system. Okay, anything else? Next topic, please. Can you? I told you next topic, please. धार्मिक. चैप्टर ओवर. हाँ, मतलब 3 ही टॉपिक है जो कंप्लीट करने थे, एंड चैप्टर ओवर.
Unpopular and controversial laws. Yeah, unpopular and controversial laws. We have some special laws, okay, which are not famous. Okay, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज, okay, there are so many laws, but possibilities are we don't know some laws, हम नहीं जानते कुछ laws के बारे में. जैसे we have child laws also. It means in Indian constitution there are so many laws for so many different sections. Okay, बहुत सारे section है ऐसे. Okay, if you are thinking and searching from the background, listen carefully. The first thing, okay, we have people, okay, under 6 years. Okay, Indian Constitution, part number 4. Okay, Indian Constitution, part number 3. ऐसे बहुत सारे sections है अलग अलग. उसमें एक law है DPSP, Directive Principles of State Policy. ये क्या दिखाता है, पूरे इंडिया में जितने भी लॉज लागू होते हैं, ओके, उसमें स्टेट को कौन से लॉज लागू करने हैं. जैसे 1 to 6 और 0 to 6 के जो चिल्ड्रन है उनके लिए भी लॉ है डीपीएसपी में, उसके लिए भी लॉ है. देन 14 तक फ्री एजुकेशन, ओके, यू नो अबाउट दैट. ओके, 6 year to 14 years they have okay, right to education. It means free education which will given by the government. Okay, this is also a law for children. We have senior citizens law also. Okay, it is also mentioned in DPSP. So you can understand we have so many laws. It means we have a complete package of laws. The Indian Constitution is the best constitution of the world, you can say. Biggest, written and best. Okay, 3 out of 3 things we have in India. Okay, उसको हम ठीक से लागू नहीं कर पाते, वो 2 नंबर की बात है. ओके, उसको हम साइड पे रखेंगे अभी के लिए. हम सही से उसको अप्लाई नहीं कर पाए, इट इज ओके, थर्ड थिंग. बट है वो बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए जो है इंडिया में. ओके, सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सबके लिए लो है. वुमेन्स लॉज वी हैव आल्सो, राइट. 18 ईयर के बाद वोट देने का. ओके, इफ यू नो, देन यूएसए में सफरेज मूवमेंट हुआ था. ओके, क्यों हुआ था सफरेज मूवमेंट का मतलब पता है? For voting, okay, if any country, the people of any country, okay, वो जो भी मूवमेंट करेंगे इसको बोलेंगे सफरेज मूवमेंट. इंडिया में 1947 में जब लॉ बनाना शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हुआ, फ्रॉम दैट टाइम टू 1950s वी अप्लाइड इट. ओके, तब तक हमने जो लॉज थे, ओके, उसमें ऑलरेडी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया था. इवन ओके, यूएसए had not been able that time. इतना एडवांस कंट्री जब नहीं सोच सकता था कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उस टाइम पे इंडिया ने वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया था. इट्स अ ट्रुथ. सो यू कैन से, ओके, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ऑथेंटिकेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज. ओके, दैट इज व्हाई, ओके, you are learning civics in your chapters, okay, in the SST. Why you are learning? Okay, because those are important. Which laws are important, which things are important for you. Okay, कौन सी चीजें हमारे लिए important है वो तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को. पढ़ने के पीछे का रीजन ही यही है, याद रखना. Why we are learning SST? Okay, geography, it's okay, we know about geographical area of India. Okay, that is why we are learning it. It's okay. Okay, it doesn't matter. We are learning about history, what had been done in the past, we know that. Okay, what had been done with us. Right now what is important? Right now what is important? Past में हो गया वो हो गया. Okay, we learn something from our mistakes. Okay, we can learn something from our good things too. It is also very important. But why we are learning civics? Okay, because we are Indian, we are citizen of India, and every citizen of India has to know about our constitution, what it says, which rights we have. Okay, आपको पता होगा इंडिया में I uploaded a video, right? मैंने एक वीडियो अपलोड किया है YouTube चैनल पे मेरे. If you have seen it, क्या है उसमें?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। वो पहले वाला जो आपने देखा होगा उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ओके, वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स, ओके, उसमें से एक माइनस हो गया, तो अभी है 6 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज टू, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके, उसके बारे में बताया गया। एक और वीडियो है वो भी देखना आप। तो उस पर क्या है, इंडिया में ये जो फॉर्म हुआ, ये जो चीजें बन गई उस टाइम पे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। एक मैंने वीडियो रखा था सरदार पटेल के बारे में, ओके, हाउ ही फॉर्म्ड एंड हाउ ही यूनाइटेड इंडिया, हाउ ही मेड यूनाइटेड इंडिया, ओके। जर्मनी नाम का एक छोटा सा कंट्री था उस टाइम पे, उसके 2 हिस्से हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ओके। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिस्से होने के बाद उसको एक करने का काम कुछ लोगों ने किया, ओके। गैसेस मैजिनी नाम का एक पर्सन है, गैरीबाल्डी नाम का एक पर्सन है, ऐसे 3 लोग हैं वहाँ पे, कावुर थर्ड पर्सन। इन तीनों ने मिलकर जर्मनी का एकीकरण किया, जर्मनी को एक करने का काम किया। जब इंडिया फ्री हुआ तो उसमें स्टेट्स थे छोटे छोटे, हाउ मेनी स्टेट्स, जस्ट इमेजिन 562 states and more than 300 states have in India, understood? 300 से ज्यादा स्टेट हमारे पास थे, गुजरात में, सर मैं मिस्टेक, गुजरात में थे, और उसमें भी 266 स्टेट्स वर इन सौराष्ट्र रीजन। आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, एंड सरदार पटेल हैज डन इट, he had done it in only 75 days, it is very less time, okay। एक घर को फ्लेक्सिबल रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, उन्होंने 75 डेज में 562 स्टेट्स को एक कर दिया था, ओके। अब सोचो अगर वो ना होता तो सबके स्टेट्स के लोग अलग अलग होते, भावनगर स्टेट, सूरत स्टेट, ओके, ईडर स्टेट, देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया दैट टाइम, ओके। राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। इन सबको एक करके स्टेट बनाने का जो काम किया, ओके, इट वाज, if you are thinking it in deep, it was impossible। ऐसा लगेगा इतने सारे स्टेट को 75 डेज में करने वाला इंसान था कौन, ओके। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि सच में हो गए हो, कैसे किया होगा, हो गए ना, दिखाई दे रहा है, फिर भी डाउट होता है, ओ माय गॉड 75 डेज ओनली एंड ही हैड डन, हाउ इज इट पॉसिबल। पर वो आपको क्या लगता है ऐसे ही लोग थे, दे वर कॉमन पीपल? नो, दे वर नॉट कॉमन पीपल, दे वर किंग्स, ओके। द ऑथर और ऑनर ऑफ द पर्टिकुलर लैंड कैसे दे देते हैं, आपको बोले प्लीज गिव अस योर हाउस, हाउ विल यू डी, ओके, डील विथ इट। आपके घर को कोई मांगता है तो आप दे दोगे, बोलेंगे आपको सर हर महीने पैसे मिल जाएंगे, आपकी घर प्रॉपर्टी हमें दे दो, दैट्स इट। क्या लगता है आपको? इट इज बीन पॉसिबल फॉर अस, नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। यही काम उन्होंने किया था, 562 स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का काम, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम भी इतना ही डिफिकल्ट हुआ करता था, ओके, क्योंकि पूरे इंडिया के बारे में सोचना है, हर जगह सब अलग है, लैंग्वेज अलग है, ओके, खाना अलग है, कल्चर अलग है, एरिया अलग है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी, ओके, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ओके। एक ही कंट्री में, जैसे मान लो कि यूएसए को लेते हैं हम लोग, तो यूएसए में इंग्लिश स्पीकर्स ज्यादा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट एनी लैंग्वेज, द पीपल, ओके, बाय religion, okay, doesn't matter, maximum people those who are living there they are Christians, so doesn't matter, okay, लोग के बारे में कोई इश्यू नहीं होगा। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कोल्ड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो वहां पे विविधताएं नहीं है, ओके, डाइवर्सिटी जितनी इंडिया में इतनी नहीं है, तो वहां पे कोई भी काम करना आसान हो जाता है। हमारे यहाँ लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस वी हैव, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ओके, एंड more than 300 dialects in India, you just imagine, जो टोन बदल जाता है ना गुजरात में, ओके, गुजराती बोलने वाले जो लोग हैं उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो जाता है, जैसे उत्तर गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती अलग होती है, साउथ में मतलब दक्षिण गुजरात में बोली जाने वाली सुरती अलग होती है, मतलब पाटन साइड बोलेंगे वो लोग अलग होंगे, काठियावाड़ी, सुरती, बहुत हाँ, सारे। काठियावाड़ी सुरती सब अलग अलग मतलब डायलेक्ट्स है, एक ही लैंग्वेज के डायलेक्ट्स भी अलग है। तो यहाँ पे वो जो भी काम किया जाता है ना वो डिफिकल्ट होता है, मतलब इंडिया में जो काम किया जाएगा वो उस इंसान के लिए डिफिकल्ट ही होगा। बाद में लो मैनेज करने की बात हो
लैंग्वेज की बात हो, ओके, खाने की, कल्चर की, व्हाटएवर, ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज, मतलब ढेर लगा दो डाइवर्सिटीज का, थक जाओगे डाइवर्सिटीज काउंट करते करते, इतनी डाइवर्सिटीज है इंडिया में. देन वी आर ओके वन. डाइवर्सिटी तो है ही है, बट एक अच्छी बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, बुद्धिज्म, जैन, ओके, कितने सारे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग, अलग अलग एरिया वाले लोग, सबका दिमाग अलग होगा, आपके सबका मेंटालिटी अलग है, सबका मानना अलग है, ओके, रिचुअल्स अलग है, संस्कार जो है, ओके, एथिक्स अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, देन वी आर लिविंग टुगेदर. ओके, और इसको जोड़ के रखने का काम लॉ ने किया है. ओके, कुछ चीजों में हम लोग अलग हो जाएंगे, उसने लॉ ने उसको बाइंड करके रख दिया. ओके, यू हैव टू डू दैट ओनली. ओके, यू कांट डू दिस थिंग. ओके, यू कांट डू दिस थिंग, यू हैव टू डू, ऑल ऑफ यू, ओके, हैव टू डू दिस ओनली. ओके, ये बाइंड करके रखने का काम किया है. ओके, एनी डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. We understood Okay, next time everything. we'll learn next chapter. Okay, we'll revise chapter, then we'll go ahead. Okay, if you have any problem, sir. you can ask tomorrow. Okay, Sir, now, no problem. okay, good. If Okay, sir. no problem, then no problem. But if you have problem, you can ask tomorrow. Okay, now time up. Okay, bye bye. Okay. Okay, Bye, sir. bye. Thank you, Bye, sir. sir. Always welcome. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. See you. Bye.